मुझे ट्रेन देखने और उनके बारे में जानने की बहुत रुचि थी, पर मुझे ऐसा लगता था कि मैं ऐसा एक अकेला बंदा हूँ। बाद में जब मैं इंटरनेट की दुनिया से रूबरू हुआ तब मुझे पता चला IRFC नामक एक संघ के बारे में। IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फैन क्लब एसोसिएशन अर्थात भारतीय रेलवे प्रशंसक संगठन संघ। ये उन लोगों द्वारा बनाया गया एक संगठन है जिन्हें रेलगाड़ियों के बारे में बहुत रुचि होती है, और हर साल इस संगठन के सदस्य इकट्ठा होते एक वार्षिक सम्मेलन में जिसे नाम दिया गया है IRFC कन्वेंशन, और इस साल ये कन्वेंशन हो रहा है विजयवाड़ा में। तो इस वार्षिक सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए देश विदेश से रेल प्रेमी इस बार विजयवाड़ा आ पहुंचे हैं, और मैं भी आ गया हूं विजयवाड़ा, जहां पे मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आखिर ये IRFC कन्वेंशन में होता क्या है, और हम साथ मिलकर एंजॉय करने वाले हैं रेल फैंस या फिर रेल प्रेमियों के इस 2 दिवसीय उत्सव को। तो यार पहले दिन की शुरुआत होती है और सभी के सभी मेंबर्स पहुंच जाते हैं कन्वेंशन सेंटर, जहां पे दिन की शुरुआत होती है एक बहुत ही स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट के साथ। अभी हमारा जस्ट ब्रेकफास्ट ख़त्म हुआ है और अभी हम कन्वेंशन हॉल में आ चुके हैं, और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो इनिशियलाइज़ किया जाएगा 17th कन्वेंशन को, कुछ यहाँ पे प्रेजेंटेशन वगैरह होंगी। लेट्स सी, आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है क्या होने वाला है। सुबह के अभी 9:30 हो रहा है और सभी के सभी जो भी डेलीगेट्स हैं यहाँ बैठ चुके हैं। The 17th annual convention. So I feel elated. 16 men in the past had the rarest of the rarest opportunity in inviting delegates to this wonderful convention. The term Vichayanti, it means inviting a person in the most humblest and most politest way. The term was coined by Jacob Garu. So Vichayanti, Vijayawada coined very well. And thanks Jacob Garu for this wonderful phrase, which also happens to be the hashtag of Vijayawada 2023. So it's unfortunate that we came across a lot many shattering messages. तो IRFC 17th कन्वेंशन का आगाज़ होता है, और एक क्विक इंट्रोडक्शन के बाद सभी लेट रेल फैंस की आत्मा को शांति देने के लिए 2 मिनट का मौन धारण करते हैं। और इसके बाद स्टेज पे बुलाया जाता है उन लोगों को जिनका ये पहला कन्वेंशन था, जिनमें से मैं भी एक था। सभी ने अपना एक क्विक इंट्रोडक्शन दिया, जहाँ पे वो बताते हैं कि कैसे वो इस कम्युनिटी का एक पार्ट बने, कैसे उन्हें ट्रेन्स पसंद आई वगैरह वगैरह, और मैंने अपने विचार शब्दों में कुछ यूँ रखे। Hi everyone, so myself Saurabh from DDU, that is former Mughal Sarai, as you all know. We don't prefer calling it DDU now, so just a short form. So basically my journey started as everyone is here, has been started right in the childhood. I used to roam in Mughal Sarai Yard on my cycle and grew up this with so-called thing that is called rail fanning, which I got to know later. And as I grew up, I met few people online. I came to the internet world in 2017, quite late from you people, but yeah, I met few people, and after that I started experiencing this thing while that sharing pictures and videos, and after that I started my journey as well of sharing and clicking pictures and then traveling all over India. Most of the people might think that this is my first convention, but this is my first convention in person. Last year I was in Siliguri chasing you people on board on my scooty, if you remember correctly. So it was quite a good experience, and I was always thinking of this attending in-person meeting with all the people, and finally it happened. Thank you all for organizing this, the OC committee and everyone. Thank you. Okay, sir. अब मेरे अलावा ना मैं आपको एक और बंदे का इंट्रोडक्शन सुनाना चाहूँगा। ये है सौरभ वासु भाई, जो कि कोलकाता से हैं, और इनका इंट्रोडक्शन आप खुद ही सुन लो। FCA, where it all started, the mother of all, the OG of all. We grew up watching the Apurva Bahadurs, the Shashankanandas, the Binay Shankars, and the Bharat Gurus. And there, from then on, it was a journey into a vast unexplored world.
As the saying goes, once a wise man said that you are born a real fan, you don't become a real fan. I am Shaurya Basu, I am a student of Gati Shakti Vishwavidyalaya. तो इंट्रोडक्शन यहीं पे ख़त्म होता है और अब बारी थी यहाँ पे नॉलेज सेशन या फिर प्रेजेंटेशन की। तो पहला जो प्रेजेंटेशन था वो था एक्सपेंशन ऑफ इंडियन रेलवेज इन नॉर्थ बंगाल, जिसकी एक बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट प्रेजेंट की अनुभव दान है। पहली प्रेजेंटेशन ख़त्म होती है। अब जो दूसरी प्रेजेंटेशन होने वाली थी वो होने वाली थी फूड एंड कंफर्ट इन इंडियन रेलवेज, जहाँ पे डॉक्टर कल्याण सुंदरम हमें बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक इंस्टेंट डोसा मशीन तैयार की है जो कि रेलवे स्टेशन पे इंस्टॉल किया जा सकता है क्विक और इंस्टेंट डोसा के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। एंड जो सेकंड पार्ट था इसका वो था कंफर्ट इन इंडियन रेलवेज, जहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ें जैसे हमें कैसे सोना चाहिए वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें डिस्कस की गई। और इन सब के बाद शुरू होता है वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ IRFCA कन्वेंशन, जो कि है IRFCA क्विज़। तो हमारा इंट्रोडक्शन सेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अभी होने वाला है क्विज सेशन। उसके लिए हमें ये छोटी सी डायरी दी गई है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके आंसर देने हैं। अब मैं यहाँ पे आपको पूरा क्विज तो नहीं दिखाऊंगा, बट स्टिल अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ पे मैं एक एक सेकंड के लिए सारे क्वेश्चंस का एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। इफ़ यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस यू कैन। आंसर मैं आपको कमेंट्स में पेस्ट कर दूंगा। Stations, the lowest number of railway stations, junctions, and the states which have the highest number, maximum number of. अब लंच से वापस आने के बाद एक और प्रेजेंटेशन शुरू होती है, बट ये वाली जो थी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और इसका जो पूरा क्रेडिट्स है वो जाता है आदित्य भाई को, जिन्होंने बहुत ही डिटेल्ड स्टडी प्रेजेंट की थी ऑन नंबर ऑफ रेलवे स्टेशंस इन इंडियन रेलवेज, जहाँ पे हर एक स्टेट के क्यूमुलेटिव नंबर्स, हर एक डिस्ट्रिक्ट के क्यूमुलेटिव नंबर्स और भी बहुत कुछ। वैसे ये प्रेजेंटेशन तो काफ़ी लंबा था, बट मैं आपको स्क्रीन पे एक क्विक समरी दिखा दूंगा जो भी आदित्य भाई ने हमें वहाँ पे शेयर किया था। एंड ये जो वर्क है इसका पूरा क्रेडिट जाता है आदित्य भाई को। IRFCA taking volunteers who could do those 9,418 stations, covering all of them in 100 days. If you can travel fast through, not necessarily stop or get down, just travel fast through. That means you are going to cover each and every railway line in this country in 100 days. He is willing to, and he has already started the groundwork of finding out the connections which you can take to do this job. So his aim is to cover all stations of IR in 100 days. सो दिन की सारी प्रेजेंटेशंस यहाँ पे एंड होती हैं और अब शुरुआत होती है यहाँ पे IRFCA क्विज़ के फिनाले की। तो यहाँ पे जो राउंड 1 के टॉप 8 परफॉर्मर्स होते हैं उनको स्टेज पे बुलाया जाता है और यहाँ पे 2-2 की 4 टीम फॉर्म की जाती है। अब वैसे ये क्विज़ तो काफ़ी देर तक चला था और यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स थे, तो वो तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगा, बट एट द एंड क्विज़ किस टीम ने जीता वो मैं आपको दिखा देता हूँ। Anyway, so business of announcing the winners. Okay, in reverse order. Team B qualified with 20 points. Pramod and Aditya Vaidyanathan. Let's have a big round of applause for the finalists. Team C, Ganesh and Arjun Gopal. Third position. Then runners up, Anirudh Iyer and Avinash Patil. And the winners of the quiz, Sampak Kumar and Priyanka Koja. Very congratulations. तो देखो IRFCA कन्वेंशन जो है ना वो हर साल नई लोकेशन पे होता है और इसके लिए प्रीवियस कन्वेंशंस में उन लोकेशंस के लिए बिड रखी जाती है। अब हर साल की तरह इस साल भी ये बिडिंग डे 1 के एंड में होगी और अभी जो भी लोग नेक्स्ट ईयर के कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं वो प्रेजेंट करेंगे कि आखिर वो कौन सी जगह पे कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं और किस तरह से करना चाहते हैं। एंड देन नेक्स्ट डे वोटिंग होती है एंड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वोट्स ये डिसाइड होता है कि नेक्स्ट कन्वेंशन कहाँ पे होगा। And we have received 2 bids.
So it's going to be a straight fight between the two. So I will now call upon both the bidders to please present their case, and once we have that in place, we will give them enough time to do some campaigning, vote buying, whatever you can call that. Okay? And tomorrow morning, the voting will take place. Can I call upon the first bidder, the team of Trayambat Oza? So this is a bid from Shimla. Why Shimla? So it's the queen of hill stations, doesn't need much of an introduction. With an unparalleled history of hospitality and tourism legacy from the time of British. It was the summer capital of India. We do it during the month of winters with great chances of encountering snow. Something which is very unique, except now which we see in Kashmir. And it's a treasure trove for lovebirds with spectacular locations in the hills whoever want to, as well as for rail lovers with a railway experience that is truly UNESCO certified, which we make a nice joke of. Okay, Dr. Hingirish is going to present you on behalf of the team. Thank you, Rich. Yes. हो गया, मैं शिमला नहीं जा रहा भाई. So we invite you for the next convention. We invite you for the voting, and we beseech your votes in order that we may be able to host you guys on the Sakleshpur Subramanya Road Ghat section, which is again a unique place like no other. So that is our pitch. So on day one, we'll all get together at Yeshwantpur at 7 o'clock in the morning when the Yeshwantpur Mangalore Express whistles and departs. And day one will be on the express. The USP is the Sakleshpur Ghat section, which is one of the most breathtaking. Yeah, we have put up a picture of the Vista Dome, but the Vista Dome is for the commoners. For us, it is the unreserved SLR coach right next to the mountain. और इसी के साथ जो है वो बिडिंग भी एंड हो जाती है. एक कन्वेंशन का लोकेशन जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रपोज्ड है वो है शिमला, एंड दूसरा जो है वो है शिराडी घाट्स एंड मैंगलोर बेसिकली, एंड वन ऑफ अ काइंड कन्वेंशन जो पहली बार होगा ऑन बोर्ड अ ट्रेन. आपको क्या लगता है कौन सा बिडर जीतने वाला है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना. Dinner will be served at 8 p.m. same place. तो इसी के साथ 17th IRFCA कन्वेंशन का डे 1 यहीं पे एंड होता है, और डिनर करने के बाद हम वापस अपने रूम में पहुंच जाते हैं. तो दोस्तों फाइनली आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है, और आज फर्स्ट डे था, काफ़ी एक्साइटिंग रहा. बहुत सारे क्विजेस हुए, बहुत सारे डिस्कशंस हुए, बहुत सारे प्रेजेंटेशंस हुए. जो भी था मैंने सब आपको दिखा दिया. अब डे 2 पे क्या होने वाला है, मे बी मैं सुबह सुबह कल एक्सप्लोर करने जाऊँ कृष्णा रिवर और कृष्णा रिवर ब्रिज, सो वो मैं दिखा दूँगा आपको सुबह सुबह. और डे 2 पे जो भी होगा, लाइक नेक्स्ट कन्वेंशन कहाँ होने वाला है वो डिसाइड किया जाएगा, और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लाइक IRFCA वीडियो ऑफ द ईयर, IRFCA फोटो ऑफ द ईयर, IRFCA एल्बम ऑफ द ईयर, ये सारे जो भी होंगे ये सब कल होंगे. अभी के लिए रात बहुत हो गई है, खाना पीना सब खा लिया है, तो अभी फ़िलहाल सोते हैं और सी यू टुमारो. अब यार डे 2 पे एज प्लान्ड हम पहुंच जाते हैं सुबह सुबह कृष्णा रिवर, पर शायद हम यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही जल्दी पहुंच जाते हैं और अभी भी अंधेरा ही रहता है. तो अंधेरे में ही हमें किसी तरह इस व्यू पॉइंट का रास्ता मिलता है, जिस पे चढ़कर हम सुबह होने का इंतज़ार करने लगते हैं. जैसे जैसे सुबह होती जाती है वैसे वैसे नज़ारा और खूबसूरत होता जाता है, और इसी बीच हम बहुत सारी ट्रेन्स भी स्पॉट करते हैं और खूबसूरत कृष्णा रिवर के नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हैं. सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ डे 2 इन विजयवाड़ा, और अभी मैं हूँ ये विजयवाड़ा की सबसे मोस्ट आइकॉनिक लोकेशन पे. एक साइड है कृष्णा कनाल, दूसरे साइड है कृष्णा रिवर ब्रिज. बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है. सुबह सुबह आए थे हम यहाँ पे कुछ 4 दोस्त और 2-3 लोग और पीछे से भी आ गए, बट यार वाकई में बहुत ही सही लग रहा है. सब लोग पीछे, अभी मैं इधर आ गया इन सर्च ऑफ समथिंग डिफरेंट. सनराइज़ हो रहा है, उसके लिए मैं शॉट लेने वाला हूँ, प्लान कर रहा हूँ उधर से लेने का. लेट्स सी हाउ इट गोज़.
फाइनली आई एम डन विद द शॉट दैट आई वाज प्लानिंग टू टेक। और कृष्णा कनाल, जो भी विजयवाड़ा या साउथ इंडिया से होंगे उनको पता होगा इस लोकेशन के बारे में। दैट्स द कृष्णा ब्रिज और इधर हूँ मैं। अभी जो प्लान है वो है वापस सेम लोकेशन पे जाने का जो कि ओल्ड ब्रिज था वहाँ पे, और फिर वहाँ से मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगा। विल ट्राई टू टेक फ्यू मोर शॉट्स। उसके बाद वापस बैक टू कन्वेंशन सेंटर जहाँ पे आज का हमारा सेकंड डे स्टार्ट होगा 8 बजे सुबह, और वहाँ पे देखते हैं आज क्या फंक्शंस, क्या प्रोग्राम होने वाले हैं। फिर फाइनली मैं इस पोजीशन पे आ गया हूँ, इस लोकेशन पे आ गया हूँ जहाँ से कृष्णा रिवर दिखती है और कृष्णा ब्रिज दिखता है। कुछ ऐसा है नज़ारा यहाँ से। और अब बस इंतज़ार है तो ट्रेन का। ट्रेन आती है, कुछ शॉट्स लेते हैं, कुछ वीडियोज़ लेते हैं, शेयर करते हैं आपके साथ। इस साइड है विजयवाड़ा जंक्शन, इस साइड है कृष्णा कनाल जंक्शन। लाइन इधर चली जाती है टुवर्ड्स चेन्नई, इधर चली जाती है टुवर्ड्स व्हाट शुड आई से सिकंदराबाद, व्हाटएवर, सिकंदराबाद और वाइजैक। लेट्स सी, कुछ आता है तो दिखाता हूँ। हेलो सर। तो इस जगह को एक्सप्लोर करते करते पता नहीं कब 2 घंटे बीत जाते हैं और सुबह के 8 बज जाते हैं। हमें याद आता है कि कन्वेंशन सेंटर वापस भी तो जाना है, तो फिर से हम वापस चल पड़ते हैं कन्वेंशन सेंटर की तरफ। अपडेट ऊपर फटाफट रेडी होकर मैं पहुंच जाता हूं कन्वेंशन सेंटर। बट आज यहाँ की हवा में कुछ अलग बात है। लोग एक दूसरे से घुल मिल गए हैं, हर कोने में एक अलग डिस्कशन चल रहा है, और जो डिफरेंस है वो मैं लोगों के कपड़ों से भी फील कर पा रहा था। किसी ने आई एम रेल फैन वाले कपड़े पहने हुए थे, तो किसी ने WDG4 की फोटो ही टी शर्ट पे प्रिंट करा ली थी। एक कोने में नजर गई तो वेस्ट बंगाल के रेल फैंस एक अलग ही पोशाक पहनकर ग्रुप में बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना उनसे इसका रीजन भी पूछ लिया जाए। This is just to showcase a show of strength and unity, and the original idea was proposed by Bappa Pal Jethu, fondly also known as Bappa Da, Mr. Tapan Pal and Kaushik Mojumdar Da. So it was really a unique and novel idea to showcase the bonding between the Bengal group of rail fans. खैर मैं भी अपना नाश्ता फटाफट से ख़त्म करके पहुंच जाता हूँ अगले कन्वेंशन की लोकेशन के लिए वोट देने, और फिर वहां से अपनी सीट पर। ऑल कन्वेंशन अटेंडेes -1, -2, -3, -4, -5. That's it. एंड फाइनली अब बारी थी IRFCA अवार्ड विनर्स अनाउंस करने का। IRFCA वीडियो ऑफ द ईयर अवार्ड, IRFCA फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड, IRFCA एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड, IRFCA क्विज विनर्स एंड IRFCA मोस्ट सर्किटस रूट टू द कन्वेंशन अवार्ड। Yes, this was the voting trend, the percentage, pretty decently contested award. And who do you think is the winner? Yes, all of you, most of you have got it right. It's Akshay Inamdar. Wonderful to have Akshay Inamdar take this award. LAC Memorial Album of the Year Award, and Akshay Inamdar again. Congrats Akshay for double award. The next award is Sachin Buddhisagar Memorial Photo of the Year Award for 2022. Who do you think got it? Abhilash Trayambak, Dr. Saab, Vineet. Yes? Dr. Saab, aa jao. Dr. Gulpreet Rao. आज पता नहीं सुबह क्या पट्टी पढ़ाया डॉक्टर साहब ने, वरना बोला होगा काट दूंगा। At the end, who do you think won? Anubhav, Aditya, Sriram, Aditya Nivarti. The most circuitous route, we had the top 3 nominees were Souvik Sarkar, Pushkar Joshi and Jagdish. And ठीक है, इस बार हम सोविक सरकार को देते हैं।
So I invite you to give the award to the runners-up of the quiz, Avinash Patil and Anirudh. Wow! The winners of the quiz, Sampat sir and Gurli Oza. एंड फाइनली अब अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन के बाद बारी आती है नेक्स्ट ईयर के कन्वेंशन के लोकेशन के अनाउंसमेंट की। See, you have to climb ghats to reach Shimla. Again, you have to pass 2 ghats to reach Shirani Ghat to reach Mangalore. I think this time people have preferred Shirani Ghats. So, thank you. Can I call BJJ OC? Victory side. Congratulations, Shirdi gang. तो यार देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और ये कन्वेंशन भी खत्म होने को आता है और हर साल की तरह इस साल भी कन्वेंशन का एंड होता है ग्रुप फोटो के साथ। Okay, now I think we'll have the group photographs. Group photographs and then we can move for lunch. तो सभी लोग एक आखिरी बार पहुंच जाते हैं स्टेज पर जहां हम लेते हैं एक ग्रुप पिक्चर। कैमरा तो अच्छा है ना? और इसी के साथ 17th कन्वेंशन का ऑफिशियली द एंड होता है। इस कन्वेंशन से पहले मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को नहीं जानता था, पर इन 2 दिनों में बहुत सारे लोगों को जानने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत सारी ट्रेन्स की बातें हुई और भी बहुत कुछ हुआ जो कि हमेशा यादों में बना रहेगा। खैर ये कन्वेंशन तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है, बट हमारे पास अभी भी काफ़ी वक्त था क्योंकि हमारी ट्रेन थी रात में। तो हम कुछ दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम जाएंगे विजयवाड़ा डीजल लोको शेड, जहाँ पर कुछ बहुत ही रेयर लोकोमोटिव्स पड़े हुए हैं। और फिर क्या था, रेल फैंस की छोटी सी मंडली फिर से निकल पड़ती है विजयवाड़ा डीजल लोको शेड की तरफ। तो यार लोको शेड पहुंचकर हम सभी आराम से पूरे लोको शेड को एक्सप्लोर करते हैं। इस लोको शेड में रखे गए कुछ रेयर लोकोमोटिव्स की फोटोज और वीडियोस लेते हैं, लोको शेड के स्टाफ से थोड़ी बहुत बातें करते हैं और ऐसे ही घूमते घुमाते 3 घंटे बीत जाते हैं और शाम होने को आती है और फिर से हम निकल पड़ते हैं होटल की तरफ, जहाँ पे फाइनली अब मैं चेकआउट करूँगा और हमारा जो ये कन्वेंशन है ये फाइनली यहीं पे एंड होगा। सो द डे फाइनली एंड्स हियर और आज दूसरा दिन था हमारा IRF 17th कन्वेंशन 2023 का। और अभी हमारे जितने भी प्रोग्राम थे, जितने भी फंक्शन थे और हमने जो खुद से शेड विज़िट किया वो सब कंप्लीट हो चुका है और अभी वक्त है होटल से एग्ज़िट करने का और ये वीडियो, ये जो भी कंपाइलेशन था IRFCA का वो ख़त्म करने का। इट वॉज़ क्वाइट एन एक्सपीरियंस मीटिंग लाइक 150 पीपल हु फील ट्रेन्स द सेम वे एज वी डू। और मतलब सच बताओ तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत 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 ही अच्छा था। एंड नाउ फ्रॉम ऑनवर्ड्स अभी आगे की जर्नी देखते हैं कहाँ होने वाली है, किस जगह पे होने वाली है। एक अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप you like this experience of mine, what I have experienced myself and you are experiencing virtually. Thanks for watching. Until then, keep rain fanning.